Hello, Assalamu alaikum. So yesterday we discussed the first three C's of seven C's. So today we are going to discuss the fourth C's for the C's which are used for the effective communication. The fourth C stand for concreteness. And concreteness. It means that message should be specific instead of general. Misunderstanding of words creates problems for both parties, sender and receiver. It does mean that the message which the writer or the speaker is going to send are going to record, that message should be very specific. It deals the real purpose. It deals with the real purpose or with the real objective. It should not be very general. Does mean it should not cover so many things, and then if you are going to cover so many things, or if you are going for the general thing, in this way your message is going to get hazy and the cloudy or obscure. Your message will not be clear. अगर आप बहुत ज़्यादा जनरल चीज़ें डिस्कस करेंगे तो स्पेसिफिक नहीं रहेंगे, तो ज़्यादा मैसेज फिर क्लियर भी नहीं रहेगा, तो यूँ सेंडर और रिसीवर आप कभी कंफ्यूज हो जाएंगे. So second point, when you talk to your client, always use facts and figures instead of generic or irrelevant information. तो वेन एवर डज मीन कि जब भी आपको जो कस्टमर है, क्लाइंट है, या जो भी उनसे जब बात करने लगे हैं बिजनेस कम्युनिकेशन में स्पेसिफिकली, यू मस्ट गिव हिम हर very clear facts and figures, right? Instead of generic or kind of irrelevant information, जो भी irrelevant या इधर उधर की चीज़ें inadequate चीज़ों को मत लाएं conversation में. Just get to the point and share the facts and figures. Here we have next slide. इसमें कह रहा है कि द फॉलोइंग गाइडलाइन शुड हेल्प यू टू अचीव द कंक्रीटनेस. यानी जो नीचे दी गई गाइडलाइंस हैं इनको देखें तो इट विल हेल्प यू इन अचीविंग और गेनिंग द करेक्ट कंक्रीटनेस इन द message or in the communication. First thing is use specific facts and figures, and second is use image building words. जनरल मतलब आप फैक्ट्स और फिगर जो स्पेसिफिक है उनको यूज़ करें और ऐसे वर्ड्स यूज़ करें जो इमेज बिल्डिंग करें, राइट? दैट शुड क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ इमेज इन योर माइंड. मतलब जनरल वर्ड्स ना. फॉर एग्जांपल जनरल एक बात है जी, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ क्लास एंड स्टूड फर्स्ट इन द क्लास. ये एक जनरल बात हुई है जी. अब नेक्स्ट देखते हैं इसको स्पेसिफिक कैसे किया जा सकता है. अब इसको कंक्रीट देखें, हाउ वी आर मेकिंग दिस सेंटेंस कंक्रीट वन. इसमें कहा जा रहा है, उसमें तो ही इज़ वेरी जनरस या ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट कहा गया है एंड ही स्टूड फर्स्ट हियर. जबकि यहाँ इस सेंटेंस में देखें, वी हैव गिवन द स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड फिगर्स. Ali's GPA in BSc Electrical Engineering 2K3F session was 3.95 out of 4. He stood first in the class, in his class. यानी जो पहले पिछली स्लाइड में हमने जो बात की थी, that was a very general one, that was confusing one. Yani he stood first and he is very intelligent. We don't know who stood first, who is intelligent, and what score or what CGPA he or she achieved. तो हमें नहीं पता था. तो here in this message, here in this slide we have given the very concrete information. जो आप भी जब भी लिखें तो try to give this sort of concrete information. Concrete information वो होगी kind of आप कह सकते हैं which can pass the ऑब्जेक्टिव और साइंटिफिक टेस्ट इस तरह का पास कर सकते हैं, यानी एकेडमिक और टेक्निकल राइटिंग का टेस्ट पास कर सके, विच गिव ऑल द प्रूफ्स एंड विच लीव नो गैप इन द राइटिंग में कोई गैप ना रहा हो, यानी सारी चीज़ें पूरी हों, क्वेश्चन कोई ना रहा हो, स्पीकर कोई क्वेश्चन ना पूछ सके. सेंटेंस को पढ़ने के बाद ही शी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड विदाउट द एड ऑफ एनी विदाउट एनी एक्सटर्नल एड, यानी कोई एड के बगैर भी रीडर या लिसनर्स मैसेज को समझ सके. दैट मैसेज विल बी कंप्लीट वन. अच्छा जी, ऑलवेज राइट ऑन अ वेरी सॉलिड ग्राउंड, इट शुड डेफिनेटली क्रिएट गुड इमेज एज वेल. यानी बहुत अच्छी सॉलिड ग्राउंड पे लिखें, वो जो बात मैंने पहले कर दी है, ये अच्छा एक इमेज पुट करेगी. नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट सी इज क्लैरिटी. लेट्स सी व्हाट इज क्लैरिटी.
Accurately is purpose of clarity. Accurately कैसे इसका purpose है? Let's see. In effective business communication, the message should be very much clear so that reader can understand it easily. ज़रा effective business communication तभी होगी जब आपका message बहुत clear होगा. If your message is hazy, if your message is cloudy or the obscure one, अगर वो clear नहीं है तो ज़ाहिर है business the communication cannot be effective one, right? तो you should always choose your precise words, यानी words should be very precise, which should deal with the meaning or the purpose of the communication. We should cater to the real meaning of the purpose instead of just rambling here and there. The words should not be rambling, right? They should not be very general, जो हमने पीछे भी डिस्कस किया था पिछली स्लाइड में. नेक्स्ट इज ऑलवेज चूज फेमिलियर एंड ईजी वर्ड्स, यानी वर्ड्स आप हमेशा वो यूज़ करें जो फेमिलियर हों और ईजी हों, यानी रीडर के लिए या लिसनर्स के लिए, ना कि आपके लिए. कंस्ट्रक्ट इफेक्टिव सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ, यानी ऐसे सेंटेंसेस हों जो इफेक्टिव हों और फिर पैराग्राफ भी आपको और फिर इफेक्टिव बनेंगे. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. इन बिजनेस कम्युनिकेशन always use precise words rather long statements, यानी आप जब भी बिजनेस कम्युनिकेशन कोई करें, लिखें या बेशक बोलें, तो try to use precise or the smaller words instead of longer statements or the longer words or the difficult words. If you have a choice between long words and shorter one, always use shorter one. यानी अगर आपके पास कोई choice हो कि which word you are going to use, तो always go for the shorter one instead of the longer words. You should try to your level best to use familiar or easy to understand words so that your reader will quickly understand it. यानी आप हमेशा वो words use करें जो हमने पहले बात कर दी है, those words which are easier to understand or which are familiar to your reader or to your listener, instead of using the longer words, right? Instead of making the message hazy or the more ambiguous one. Let's move our attention to the next slide. If you have a choice between the words, for example the familiar or the next to familiar, for example if you know both the words here which fall under the category of familiar and the words which here fall under the ambit of next familiar words, you should go for the words which fall under the umbrella of familiar words here. For example, अगर आप if you know both the words after and subsequent, go for the after, and if you know both the words home and domicile, go for domicile because they are more familiar. Same as the case with, for example, another example, maybe your reader or the speaker doesn't know the meaning of eg, so instead of using e.g, you should go for example. Although it's lengthier is lengthier than eg, yet you should choose it because this is kind of more familiar word. This is easier word. Maybe the reader or the listener is not familiar with the acronym or the initial or this term that is e.g. इसी तरह pay या remuneration आए तो go for pay instead of remuneration. So same is the case with invoice and the statement for purpose, statement for payments. Go for invoice instead of using statement for payments. Let's move toward the next slide. The sixth C is courtesy. What is courtesy? Courtesy does mean knowing your audience allows you to use statements of courtesy. Be aware of your message receiver. Here, your behavior will be checked, right? How it will be checked at how kind and how good you are, how generous you are in writing, right? ये आपकी check होगी. How good you are at using euphemism. Okay, true courtesy involves being aware not only of the perspective of others but also their feelings. Courtesy stems from a sincere you attitude. यानी courtesy कहा जा रहा है कि जो असल courtesy है ये दूसरों के perspective से नहीं निकलेगी, ये दूसरे के perspective भी नहीं होते बल्कि दूसरे के feeling को भी जानना होता है, उनका भी ख्याल रखना होता है. courtesy stem ही निकलती यहाँ से कि sincere you attitude से, यानी you are basically caring about others feelings, others sentiments. It is not merely politeness with mechanical insertions of please and thank you. यानी क्या कहा जा रहा है कि सिर्फ ये नरम लहजे को यानी आप जो आप प्लीज़ और थैंक यू के साथ शो करते हैं उसी को नहीं courtesy कहा जाता, बल्कि courtesy इज काइंड ऑफ डिफरेंट थिंग. थोड़ी सी इससे स्टार्ट ये है ज़रूर है प्लीज़ और थैंक यू और काइंडली, ये भी है, ऐसा नहीं कि ये नहीं है, लेकिन दिस इज समथिंग मोर, दिस गोज बियॉन्ड दीज वर्ड्स, दीज मैकेनिकल वर्ड्स.
Although applying socially accepted manners is a form of courtesy, ये वही बात कर रहे हैं कि socially accepted manners यानी thank you, please, sorry और kindly ये भी ठीक है, courtesy में आते हैं, लेकिन still courtesy goes beyond these words. Rather it is politeness that grow out respect and concern for others. यानी ये politeness है, ये जो कि रिस्पेक्ट और कंसर्न क्रिएट करती है अदर्स दूसरों के लिए. Courteous communication generate a special tone in their writing and speaking. हाँ जी, ये चीज़ है कि courteous communication ऐसी होगी जो ना कि सिर्फ इन बेस करेगी इन वर्ड्स पे प्लीज़ थैंक यू काइंडली वगैरह पे, बल्कि ये टोन एक्सेप्ट करेगी, स्पेसिफिक टोन राइटिंग और स्पीकिंग के लिए. आइए देखते हैं कि कौन सी टोन. हाउ टू जनरेट अ courteous tone. The following are suggestions for generating a courteous tone. Be sincerely tactful, thoughtful and appreciative. यानी आप tactful रहें, thoughtful रहें, appreciative रहें जब भी दूसरों के मतलब कुछ लिखना चाह रहे हैं. Use expressions that show respect for others. यानी ऐसे expression show करें जो दूसरों के लिए respect show कर रहे हैं. Use non-discriminatory expressions. Non-discriminatory इम्तियाज जिसमें ना हो और बिल्कुल बराबरी वाला बात हुई हो रही हो. Or though few people are intentionally abrupt or blunt, these negative traits are common cause of discourtesy. पता कर चुके कुछ लोग intentionally abrupt and होते हैं, blunt होते हैं, right? उन्हें नहीं रोका जा सकता. ऐसे traits होते हैं, negative traits, personality, courtesy, इस तरह से negative courtesy आती है. लेकिन avoid expression like those in the left hand column below. Rephrase them as shown in the right hand column. नहीं, अब नीचे जो कॉलम नेक्स्ट स्लाइड में आ रहे हैं कहते हैं कि एक्सप्रेशन जो राइट हैंड कॉलम में दिए गए हैं उनको अवॉइड करें, जबकि एक्सप्रेशन रिफ्रेज देम एज शोन इन द राइट हैंड कॉलम, यानी उन एक्सप्रेशन को यूं यूज़ करें जो राइट हैंड कॉलम में है. आइए देखते हैं कौन सी एक्सप्रेशन है. नहीं करनी, नहीं लिखनी जो लेफ्ट हैंड कॉलम में और राइट वाले को अप्लाई करना है. टैक्ट यानी राइट वाले को कहता है कि टैक्टलेस और ब्लंट. फॉर एग्जाम्पल स्टूपिड लेटर, आप किसी का लेटर पढ़ते हैं, यू आर गिविंग कमेंट्स लाइक दिस, स्टूपिड लेटर, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड. अब इस बात को यू कैन यूज यूफेमिज्म. यूफेमिज्म इज अ टर्म व्हिच इज काइंड ऑफ लेस डिरोगेटरी और लेस हार्श, यानी वो हार्श कम होती है, यानी उसी सॉफ्ट टर्म के लिए, डिरोगेटरी टर्म के लिए यू ब्रिंग काइंड ऑफ स्वीटर वर्ड, ठीक है, काइंड वर्ड्स. अब वो ले आते हैं वर्ड्स, यूफेमिज्म इस प्रोसेस को कहते हैं, यानी द माइल्ड वर्ड्स, काइंड वर्ड्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग द हार्श वर्ड्स. ओके जी, अब इन्हीं स्टूपिड लेटर के लिए आए देखें क्या यूफिज्म यूज हुआ है. इसको आप यूँ भी कह सकते हैं, आई शुड अंडरस्टैंड इट एज देर इज़ नो कन्फ्यूजिंग वर्ड इन दिस लेटर, कुड यू प्लीज़ एक्सप्लेन इट वंस अगेन. यानी कहा जा रहा है कि मैं हाँ जी इसे अंडरस्टैंड करना चाहिए, कोई कन्फ्यूजिंग इतना वर्ड नहीं है, तो कुड यू प्लीज़ एक और इसे कुड यू प्लीज़ आप इसे दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं. यानी इंस्टेड ऑफ आप सेइंग के स्टूपिड लेटर आई कैन अंडरस्टैंड इट, यू कैन से दीज वर्ड्स एज वेल, व्हिच आर काइंड, which are mild, right, which are courteous, more tactful. एक और एग्जांपल है, it's your fault you did not properly read my latest facts. अब इसकी जगह ये देखें, ये भी harsh words हैं. You can say like this, sometimes my wording is not precise, let me try again. यानी आप अपने आप को वो कर रहे हैं कि my wording इतनी होनी है, नहीं आप दूसरे को नहीं बुरा फील करवा रहे, rather you are trying to focus on your own words. Okay ji, thoughtfulness and appreciation. Writers who send cordial, courteous messages of deserved congratulations and appreciation to a person inside and outside help to build goodwill. यानी ऐसे राइटर जो इस तरह के मैसेज भेजते हैं कंग्रेचुलेशन अप्रिसिएशन के, और मतलब भी वो उस तरह के राइटर होते हैं, दे आर एबल टू बिल्ड गुडविल, यानी गुडविल अच्छाई वगैरह को करते हैं बिल्ड. द वैल्यू ऑफ गुडविल आर पब्लिक स्टीम फॉर द फर्म मे बी वर्थ $1000. यानी ऐसी कोई कंपनी वगैरह के लिए गुडविल की और इस तरह की पब्लिक स्टीम के लिए ये बहुत वैल्यू रखती है. ऐसे राइटर्स बहुत वैल्यू रखते हैं जो गुडविल क्रिएट कर सकें, मिलियंस ऑफ यानी वर्थ $1000 वर्थ रखते हैं ऐसे राइटर, जैसे स्पीकर. नेक्स्ट एंड द लास्ट C is correctness. Correctness, at the core of correctness is proper grammar, punctuation and spelling. However, message must be perfect grammatically and mechanically.
आप यानी कह रहे हैं कि करेक्टनेस के कोर पे यानी ग्रामर ठीक होनी चाहिए, पंक्चुएशन और स्पेलिंग ठीक होनी चाहिए, परफेक्ट ग्रामर होनी चाहिए, मैकेनिकली ठीक होना चाहिए, सिंटैक्टिकली ठीक होने चाहिए सेंटेंसेस। द टर्म करेक्टनेस एज अप्लाइड टू बिजनेस मैसेजेस आल्सो मीन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी वो चीज़ें भी हैं और उसके साथ ये कह रहा है कि इन चीज़ों का भी ख्याल रखें तो तब करेक्टनेस पूरी होगी। यूज़ द राइट लेवल ऑफ लैंग्वेज, यानी करेक्ट लैंग्वेज यूज़ करें। चेक द एक्यूरेसी ऑफ फिगर्स फैक्ट्स एंड वर्ड्स, जो आप ये यूज़ कर रहे हैं फिगर फैक्ट्स और वर्ड्स, उनकी एक्यूरेसी को ज़रूर चेक करें, वो भी करेक्ट होने चाहिए। मेंटेन एक्सेप्टेबल राइटिंग मैकेनिक्स, यानी एक्सेप्टेबल राइटिंग मैकेनिक्स, ऐसा मैकेनिक आप फॉलो करें जो कि एक्सेप्टेबल हो, ना कि बिल्कुल एक्सेप्टेबल ही ना हो। आप ऐसा फ़ॉन्ट साइज़ ले लें या आप ऐसा डिज़ाइन ले लें या आप ऐसी 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 चीज़ों पे लिखें कि जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ट्राई टू बी वेरी फार्मल एंड दिस फार्मल डज मीन ट्राई टू बी वेरी एडुकेटेड in following all these three steps so that correctness can be achieved. Use the right level of language, इसका क्या मतलब है जी? We suggest that there are three level of language: formal, informal, substandard. Take a quick guess what kind of writing is associated with each level, what is the style of each. आइए देखते हैं कि formal, informal, substandard। Formal writing is often associated with scholarly writing, doctoral dissertations, scholarly legal documents, top-level government agreements, and other material where formality is demanded. यानी यहाँ पे ये फॉर्मल राइटिंग जो होती है, स्कॉलरली डॉक्टर डिसर्टेशन पे तो थीसिस आप लिखते हैं, डॉक्टोरल यानी पीएचडी के, या स्कॉलरली कोई आप लिखते हैं कोई थीसिस लिख रहे हैं या कोई पेपर आप पब्लिश कर रहे हैं, तो उनमें आप फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करेंगे। लीगल डॉक्यूमेंट्स में टॉप लेवल गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स एग्रीमेंट्स हैं, यानी यहाँ पे आप फॉर्मल राइटिंग यूज़ करेंगे। इनफॉर्मल वो राइटिंग इज मोर, कहाँ पे आप यूज़ करेंगे? इट इज मोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस राइटिंग आप कर सकते हैं। यू यूज वर्ड एट अ शॉर्ट वेल नोन एंड कन्वर्सेशन इन दिस कंपैरिजन। आप बिजनेस राइटिंग में आप ज़्यादातर इनफॉर्मल यूज़ कर सकते हैं, यानी जो शॉर्ट वर्ड्स होते हैं, जो वेल नोन होते हैं, जो कन्वर्सेशनल होते हैं, यानी बातचीत में ज़्यादा यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल मोर फार्मल को देखें, लेस फार्मल को देखें। ये पार्टिसिपेट इज फॉर्मल वर्ड, अगर आप ये और जॉइन जो है ये लेस फार्मल है, हालांकि ये फार्मल है लेकिन लेस फार्मल है। अगर आप ऐसी चीज़ पे कोई इफ़ यू आर यूजिंग दीज वर्ड्स फॉर द थिंग्स लाइक डॉक्टोरल डिसर्टेशंस, स्कॉलरली डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट, टॉप लेवल गवर्नमेंट एग्रीमेंट्स, तो इस तरह की यूज़ करें तो वहाँ पे आप पार्टिसिपेट यूज़ करें। इफ़ यू आर यूजिंग दिस वर्ड फॉर कन्वर्सेशन, यानी बातचीत के लिए, एज बिजनेस कम्युनिकेशन, किसी बंदे से बात कर रहे हैं, तो देयर यू कैन यूज़ जॉइन, यानी शॉर्ट पर यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ ज़्यादा वो लिखने के लिए, तो आप इसे शॉर्ट यूज़ करें। द सेम इज़ द केस विद अदर वर्ड्स। एंडेवर आप यूज़ करें, अगर आप फार्मल राइटिंग कर रहे हैं तो ट्राई यूज़ करें, इफ इनफॉर्मल कर रहे हैं सर्टन की जगह आप फाइन ऑफ यूज़ कर रहे हैं, अगर आप लेस फॉर्मल हैं। इसी तरह यूटिलाइज और यूज़, इंटेरोगेट और क्वेश्चन। सब स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहते हैं कि ये सब स्टैंडर्ड लैंग्वेज आप यूज़ करने से थोड़ा ग्रेस करें, विच डज नॉट फॉल अंडर काइंड ऑफ स्टैंडर्ड इंग्लिश या इस तरह की नहीं, अगर प्रूव हो रही तो उसे आप अवॉइड करें। यूजिंग करेक्ट वर्ड्स, इनकरेक्ट ग्रामर, फॉल्टी प्रोनाउंसिएशन, ऑल सजेस्ट एज इनएबिलिटी यूज गुड इंग्लिश। सम एग्जाम्पल सब स्टैंडर्ड में आप देखें, एंट आप लिख देते हैं समटाइम, जो इजेंट और एंड हैजंट हैवंट वगैरह के लिए यूज़ होता है, तो आप इसके लिए सिंपल वाई नॉट यू शुड यूज़ इजेंट और एरेंट अलग से यूज़ करें इंस्टेड ऑफ यूजिंग एंड। इस तरह की आप चीज़ भी इग्नोर करें। कॉन्ट हार्डली की जगह ये काइंड ऑफ सब स्टैंडर्ड है थोड़ा सा, वो कैन नॉट हार्डली, तो वाई नॉट कैन हार्डली ये यूज़ करें। एम टू प्रूविंग की जगह एम टू प्रूव कर सकते हैं, मोर एक्सेप्टेबल है। डिज़ायरस टू तो की जगह डिज़ायरस आप यूज़ करें। स्टोल्ड की जगह स्टोल्ड देखें अजीब सी फॉर्म है, स्टोलन यूज़ करें। फैक्ट्स एंड फिगर्स की एक्यूरेसी कहते हैं कैसे होगी? चेक एक्यूरेसी ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स इन वर्ड्स। इट इज़ इम्पॉसिबल टू कन्वे मीनिंग प्रिसाइसली थ्रू वर्ड्स फ्रॉम द हेड ऑफ द सेंडर टू अ रिसीवर। कहते हैं कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है उनके मीनिंग प्रिसाइसली कन्वे करना वर्ड्स के थ्रू, आप एक सेंडर से रिसीवर को। तो और गोल इज़ टू बी एज प्रिसाइज एज पॉसिबल, लेकिन गोल हमारा ये होना चाहिए कि जितना प्रिसाइज हो सकते हैं उतना मुमकिन उतना हो, which means checking and double checking to ensure that the figures, facts and words you use are correct. इसका मतलब है कि आप जो चेक करें उसको डबल चेक करें so that you should know that figures and facts which you have used or the words which you have used are correct, यानी वो ठीक होने चाहिए। A good check of your data is to have another person read and comment on the validity of the material. हाँ जी बिल्कुल, आप जो अपना मटेरियल खुद लिख रहे होते हैं, यू आर नॉट एबल टू करेक्ट योर मटेरियल, आपको अपनी मिस्टेक्स नहीं नजर आती, तो अच्छी चीज़ है कि आप दूसरे से रिव्यू करवा लें। इसी तरह फिगर्स एंड फैक्ट्स
वेरीफाई योर स्टेटिस्टिकल डेटा, डबल चेक योर टोटल्स, आप वेरीफाई करें स्टेटिस्टिकल डेटा को, डबल चेक करें, अवॉइड गेसिंग एट लास्ट दैट हैव एन इम्पैक्ट ऑन यू द सेंडर एंड यूअर, एंड हैव समवन एल्स रीड योर मैसेज इफ द टॉपिक इज इन्वॉल्व डेटा, यानी किसी और से चेक करवा लें, गैस ना किया करें और डबल चेक किए करें। डिटरमिन वेदर फैक्ट हैज चेंज ओवर टाइम, ये भी ज़रूर चेक करें कि कहीं फैक्ट को चेंज तो नहीं हो गया जो आपने यूज़ किया हुआ है। आपने कोई चीज़ 2 साल पहले की है, 2 साल बाद वही सबमिट करवा रहे हैं, मे बी वो फैक्ट अभी चेंज हो गया हो। प्रॉपर यूज़ ऑफ कन्फ्यूजिंग वर्ड्स, ये जो कन्फ्यूजिंग वर्ड्स हैं कुछ लैंग्वेज में, उनका प्रॉपर यूज़ करें। और लैंग्वेज is constantly changing. In fact, even dictionaries cannot keep up with rapid change in our language. The following words are often confused on concerning usage. यानी कहते हैं कि इवन डिक्शनरी भी जो पुरानी हो जाती हैं हार्ड कापी में, वो भी चेंज होती रहती हैं, न्यू एंट्रीज आती रहती हैं। देयर आर न्यू एंट्रीज विच आर कमिंग एवरी डे बेसिस इनटू लैंग्वेज, ठीक है। तो दो डिक्शनरीज एंड दो लैंग्वेज शुड बी अपडेटेड एंड अपग्रेडेड। तो इसी तरह फॉर एग्जांपल आ और एन है, तो आप कहते हैं कि आ वो कॉन्सोनेंट से पहले करें, एन वावल साउंड या वावल वर्ड से अल्फ़ाबेट से पहले करें। एक्सेप्ट और एक्सेप्ट का डिफरेंस देख लें। एक्सेप्ट ए वाला वो होता है कि जिसमें आप रिसीव करते हैं आप किसी चीज़ के लिए, यानी मानते हैं। तो ई वाला एक्सेप्ट स्टार्ट के जो अमिट कर रहा होता है किसी चीज़ को, लीव आउट कर रहा होता है। इसी तरह एंग्शियस जो है, यही घर का फ़र्क जाने। एंग्शियस वाला बेताब होना वो करते हैं जब आप किसी के लिए वरी हो जाते हैं, यानी परेशान हो जाते हैं, या किसी के लिए आप ज़्यादा वो हो जाते हैं, ऐसे उर्दू में बेताब हो जाते हैं, राइट। तो ईगर जो होता है वो आप बेताब किसी के लिए नहीं होते हैं, आप परेशान नहीं होते, वरी नहीं होते, बल्कि आपकी कीन डिज़ायर होती है टू डू समथिंग। This is the end of 7 C's. I hope you have understood. If you have any question, you can ask me on WhatsApp, you can even ask me on Google Classroom, whatever you want. Thank you very much.